نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے حالات بیان فرمائے تھے مشرکین مکہ کے، کہ مشرکین مکہ کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ہر قسم کی تدبیریں اور چالیں چلیں اسلام کو روکنے کے لیے، یہاں تک کہ باہر سے اگر کوئی مہمان آتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کا اظہار کرتا تو اس کا راستہ روک لیا جاتا۔ اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کو مارا جاتا، اور اگر وہ طاقتور ہوتا تو اس کو ہدیے تحفے پیش کر کے وہیں سے واپس روانہ کر دیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں جب دور دراز تک باتیں پہنچنے لگیں تو لوگ تحقیق کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں پر اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے تھے۔ جب کوئی مسافر مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے، ہاں جی کیسے آنا ہوا، کس سے ملنا ہے، جب وہ اپنے دل کی بات کرتا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، وہیں سے اس کو الٹا ذہن پڑھانا شروع کر دیتے۔ جو کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھئی جو وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو پچھلے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی وحی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے، خود تو گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن خود اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کا بوجھ بھی اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر یہی سوال کسی ایمان والے سے کیا جاتا، اگر کوئی بندہ وہاں سے ان سے بچا کے، اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا تھا؟ ایک بندہ تحقیق کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اب اس کو آگے سے نمائندے مل گئے جھوٹے، اور انہوں نے جھوٹی جو بھی باتیں اس کو سنا دیں، وہ پیچھے اپنی قوم میں جا کر وہی باتیں نقل کر دے گا۔ وہ میں جی مکہ مکرمہ سے ہو کے آیا ہوں، میں پتہ کر کے آیا ہوں، وہاں سے وہاں کے لوگوں سے مل کے آیا ہوں، وہ سارے بتا رہے ہیں کہ یہ جھوٹی قصے کہانیاں سارے۔ اب کتنی غلط بات قرآن پاک کے متعلق کہاں تک تشہیر کر دی گئی۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ وہ بندہ جس نے یہ سارا پروپیگنڈا قرآن پاک کے مخالف کیا۔ اب اس سے غلط خبریں پھیلتے پھیلتے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اور عذاب اور گناہ اس بندے کے سر چڑھ رہا ہے جس نے یہ سارا معاملہ کیا اسلام سے روکنے کے لیے۔ یہ ہیں وہ تدبیریں اور چالیں جس کا ذکر کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان سے بچا کے، وہ جو جھوٹے نمائندے مشرکین کے بیٹھے ان سے بچا کے کوئی پہنچ جاتا ایمان والوں کے پاس، اور وہاں آ کر اگر وہ سوال کرتا، وہی سوال وہی ہے، وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں سے جو پرہیزگار تھے،
माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या उतारा तुम्हारे रब ने। यानी ये जो शख्सियत बता रही कि मेरे ऊपर वही आ रही है, वही नाजिल हो रही, क्या उतारा है तुम्हारे रब ने। जवाब मिलता कालू खैरा, अल्लाह ने नेक बात नाजिल फरमाई, खैर नाजिल फरमाई है। अब ये जो खैर का जुमला है ये कुरान पाक के मुतालिक है। कुरान पाक भलाई की चीज़ है, कुरान पाक खैर और हदायत की चीज़ है, कुरान पाक बरकत की चीज़ है, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा वही इलाही है। इसलिए इससे बड़ी बाबरकत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। जिस चीज़ का ये कुरान पाक का डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ है, इससे बड़ी बाबरकत चीज़ और कोई नहीं हो सकती। और इससे पहले अल्लाह ताला ने एक जुमला इरशाद फरमाया, लिल्लज़ीना तक़ौ, मुत्तकी लोगों से जब पूछा जाता है कि बताओ भाई ये जो नाज़िल की अल्लाह ताला ने तुम्हारे रब ने, वो क्या चीज़ है, क्या कहते हो उसके बारे में, क्या तबसरा तुम्हारा। वो कहते खैर है, वो तो अल्लाह ने खैर ही खैर नाज़िल फरमाई है। तो कुरान पाक के बारे में दो मौक़िफ़ आपके सामने आ गए, एक काफिर लोगों का और एक मुत्तकी लोगों का। अब मुत्तकी कौन होता है। मुत्तकी का एक माना है बचने वाला, मुत्तकी का एक माना है डरने वाला। जो इंसान गुनाहों से बचता है वो मुत्तकी है, जो इंसान अल्लाह से डरता है वो मुत्तकी है। मुत्तकी बनने के लिए क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, कुफर से बचना, शिरक से बचना, निफाक से बचना। जो बंदा इन तीन चीज़ों से बच गया वो तकवे की पहली सीढ़ी पर आकर खड़ा हो गया, मुत्तकी है वो। फिर इससे अगली सीढ़ी तकवे की ये है कि इंसान बातिल अकीदों से बचे, गलत अकीदे, गलत अकीदा जो कि कुरान पाक के मुखालिफ, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन अहादीस मुबारका के मुखालिफ, ये गलत अकीदा जो इंसान इससे बचा वो भी मुत्तकी। तो तकवे की पहली सीढ़ी कुफर से बचना, शिरक से बचना, निफाक से बचना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इन तीनों चीज़ों से महफूज रखा है। तकवे की इससे ऊपर वाली सीढ़ी बातिल अकीदों से बचना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें बातिल अकीदों से भी बचाया, गलत अकीदों से भी बचाया। अकायद में अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, अकीदा आखरत है। ये तीन अकायद हैं जो मेन हैं, और इसके अलावा फिर छोटे छोटे और भी बहुत से अकायद हैं। तो अकायद और नज़रियात का ठीक होना ये भी मुत्तकी होने की निशानी है। फिर इससे ऊपर वाला दर्जा मुत्तकी होने का, कबीरा गुनाहों से बचना। फिर उससे ऊपर वाला दर्जा मुत्तकी होने का, सगीरा गुनाहों से बचना। ये मुत्तकी के दर्जात हैं। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया यहाँ पर, वकील लिल्लज़ीना तक़ौ, जब पूछा गया मुत्तकी लोगों से, परहेजगारों से, माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या उतारा तुम्हारे रब ने। कालू खैरा, वो कहते हैं नेक बात उतारी। ये जो कुरान पाक आज हमारे सामने मौजूद है, अल्लाह ताला को इस कायनात के अंदर जो सबसे पसंदीदा चीज़ है, सबसे महबूब चीज़ अल्लाह की इस कायनात में पड़ी है, वो कुरान पाक है। कुरान पाक से बढ़कर
कोई महबूब चीज अल्लाह ताला की इस वक्त कायनात में नहीं है। इसलिए अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ मोहब्बत करे, तो हम कुरान पाक से प्यार शुरू कर दें, कुरान पाक की हदायत पर अमल करना शुरू कर दें, कुरान पाक की तिलावत करनी शुरू कर दें, कुरान पाक के हुकूक पर अमल करना शुरू कर दें। और आगे क्या फरमाया मुत्तकी लोगों ने, लिल्लज़ीना अहसनु फी हाज़िहि दुनिया हसना, लिल्लज़ीना जिन्होंने, अहसनु भलाई की, नेकी की, फी हाज़िहि दुनिया इस दुनिया में, हसनतुन उनके लिए भलाई है। जिन्होंने इस दुनिया के अंदर नेकी की, उनके लिए इस दुनिया में नेकी है, भलाई है। और आखिरत के मकामात क्या होंगे वो अलग आगे जिक्र हो रहे हैं। दुनिया में भलाई क्या होती है, जो बंदा दुनिया में नेकी का काम करता है उसके लिए दुनिया में क्या भलाई है। एक भलाई ये है, अल्लाह उसको दिली सुकून अता फरमा देते हैं। एक भलाई ये है, अल्लाह उसको एक नेकी के बाद दूसरी नेकी की तौफीक अता फरमा देते हैं। ये निशानी है कि इस बंदे की पिछली नेकी कबूल हो चुकी, तभी तो अल्लाह ने अगली नेकी की तौफीक अता फरमा दी। अगर किसी ने आज कुरान पाक की तिलावत की और कल अल्लाह ताला ने उसको दोबारा कुरान पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमा दी, तो ये अलामत और निशानी है कि कल की तिलावत कबूल हो चुकी है। इसलिए तो आज दोबारा मौका दिया गया कि दोबारा फिर कुरान पाक की तिलावत कर लो। अगर आज किसी ने दुरूद पाक पढ़ा और कल दोबारा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो ये निशानी है कि पिछला दुरूद पाक अल्लाह के यहाँ कबूल व मंजूर हो चुका है। अगर किसी ने सदका खैरात दिया और कल दोबारा मौका मिला, तो पिछला सदका खैरात कबूल होने की निशानी और अलामत है। इसलिए हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारी भलाई को, हमारी नेकी को कबूल फरमा लिया और उसका एक बदल हमें दुनिया के अंदर ये अता फरमा दिया, हमें दिली तौर पर सुकून अता फरमा दिया और हमें आगे नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा दी। ये तो दुनिया है, आगे क्या होगा, वलदारुल आखिरती खैर, और आखिरत का घर तो बेहतर है इसके लिए। एक आखिरत में घर उस मुशरिक को मिलेगा जिसका तज़किरा पीछे गुजरा, उस काफिर को मिलेगा जिसका तज़किरा पीछे गुजरा, उन मुनाफिक को मिलेगा जिसका तज़किरा पीछे हो चुका। एक आखिरत का घर उनका है। क्या है वो जहन्नम, वो 7 दरवाजे जिनके अंदर से दाखिल करके जंजीरों में जकड़ के इनको बांध के आग के कोड़े बरसा के इनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। एक आखिरत का घर इनको मिलेगा और एक आखिरत का घर ईमान वाले को, मुत्तकी बंदे को मिलेगा, परहेजगार को मिलेगा। फरमाया वलदारुल आखिरती खैर, ये जो आखिरत का घर मुत्तकी का होगा, खैरुन ये बेहतर घर होगा। सुबहान अल्लाह, वो कितना बेहतर घर होगा जिसको अल्लाह बेहतर कह रहे हैं। आज दुनिया में किसी ने घर बनाया, उसकी तारीफ करते हुए कोई खातून कहती है मैंने उसका घर देखा, बड़ा सोना घर है, बड़ा प्यारा घर है। ये तो दुनिया तारीफ करे, और जिस घर की रब्बे रहमान तारीफ करे और वो खुद कहें वलदारुल आखिरती खैर, आखिरत का घर बड़ा सोना है, बड़ा बेहतर है, बड़ा प्यारा है। वलनिअम दारुल मुत्तकीन, और क्या ही खूब है, क्या ही अच्छा है दारुल मुत्तकीन, परहेजगारों का घर। वो कैसा घर है, जन्नात व अदनिन, वो बाग है, जन्नात बाग हैं, अदनिन हमेशा के। यहां हमारे पास भी दुनिया में बाग हैं, कोई आम का बाग है, कोई अमरूद का बाग, कोई सेब का बाग, कोई अंगूर का बाग। लेकिन यहां के जो बाग हैं ये एक जंगल का कजिया पेश करते हैं। जिस तरह जंगल में दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त, ऐसे ही हमारे बागात हैं, वहाँ दरख्त ही दरख्त, दरख्त ही दरख्त और उनके ऊपर फल हैं।
बस जब फल तोड़ लिया उसके बाद बाग की वैल्यू ख़त्म। फल आएगा, बाग की वैल्यू फिर बढ़ गई। लेकिन जो जन्नत के बागात होंगे उनका और दुनिया के बागात का फर्क क्या होगा? जन्नत के बागात वो होंगे कि अल्लाह ने जन्नती को जो बागात दिए होंगे उन बागात के अंदर उस जन्नती के महल्लात भी तैयार करके दिए होंगे। वो सिर्फ बागात नहीं होंगे कि पौधों की लाइनें लगी हुई हैं, दरख्तों की लाइनें लगी, नहीं। असल जन्नती का महल तैयार किया जाएगा और उसके चारों तरफ खूबसूरती के लिए फिर बागात सजाए जाएंगे। और फिर यहां बस नहीं, जन्नात अदन, हमेशा के बागात होंगे, यदखुलूनहा, जिनमें ये दाखिल होंगे, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जारी होंगी उसके नीचे नहरें। इनके बागात के नीचे से भी नहरें जारी होंगी, इनकी इमारत और इनके महल्लात, उनके नीचे भी नहरें जारी होंगी। और जन्नत की नहरें पता कौन सी? पानी की नहीं, जन्नत में दूध की नहर, जन्नत में शहद की नहर, जन्नत में शराब की नहर, शहद की नहर, ये सारी नहरें जन्नत में, और ये इंसान की महल्लात के नीचे से गुजर रही हैं। सुबहान अल्लाह। इन जन्नत में इसके बागात के नीचे से नहरें गुजर रही हैं। सुबहान अल्लाह। लहुम फीहा मा यशाऊन। सुबहान अल्लाह। ये लफ्ज़ अगर आप समझ जाएं तो वजद आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं लहुम फीहा, इन मुत्तकी बंदों के लिए, फीहा, उस जन्नत में, मा यशाऊन, वो सब कुछ होगा जो ये चाहेंगे। इनका दिल जब चाहे वो मौजूद होगा। बस जुबान पर लाने की नौबत नहीं आएगी, जुबान से कहने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी, बस दिल ने चाहा वो सामने आ गया। ये है जन्नत जो अल्लाह ने मुत्तकी बंदों के लिए सजाई है। कज़ालिका यज्ज़िल्लाहुल मुत्तकीन। कज़ालिका, बंदा सोचता है शायद ये ऐसे इनामात सिर्फ खास किस्म के लोगों के लिए। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, कज़ालिका, ऐसा बदला देगा, कज़ालिका, ऐसा ही बदला, यज्ज़िल्लाहु, बदला देगा अल्लाह मुत्तकीन, हर परहेजगार को। जो भी परहेजगार बन जाए, जो भी तकवा इख्तियार कर ले, अल्लाह सबको ये बदला अता फरमाएंगे। और तकवे के दर्जात मुत्तकी बनने के मैंने बता दिए पहले, क्या कुछ ज़रूरी है उसके लिए। अब इंसान दुनिया के अंदर मुत्तकी बनकर ज़िंदगी गुजार गया, तकवे की हालत में ज़िंदगी गुजार गया, और फिर इसके ऊपर मौत का वक़्त आ गया। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन। अल्लज़ीना, ये वो लोग, ततवफ़्फ़ाहुम, जान निकालते हैं इनकी, अल मलाइकतु, फरिश्ते। किस हालत में? एक फरिश्ते पिछले सबक में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाए थे, फरिश्ते आते हैं जान निकालते हैं बंदे की कुफर की हालत में, निफाक की हालत में, शिरक की हालत में जान निकाल ले। और एक यहां जिक्र फरमाया इसकी जान निकाली तय्यिबीन, पाकीज़गी की हालत में। रूह पाकीज़ा थी, रूह शिरक की बदबू से पाक थी, कुफर से पाक थी, निफाक से पाक थी, कबीरा गुनाहों से पाक थी, गलत और बुरे अकीदों की पलीदगी से ना पाक थी रूह। जब पाक थी, अब आ गए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए। अब आकर फरिश्ते क्या कहते हैं? यक़ूलूना सलामुन, फरिश्ते कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक ये मौत है नेक बंदे की। फरिश्ते आकर उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। और एक बाद रवायात में आता है, मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि यक़ूलूना सलामुन का मतलब ये कि फरिश्ते सलाम नहीं कहते, बल्कि फरिश्ते अल्लाह की ज़ात का सलाम पहुँचाते हैं कि ए बंदे, तुझे रब्बे ज़ुल जलाल का सलाम हो, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह का सलाम पहुँचाते हैं। और फिर उसको खुशखबरी क्या दी जा रही है कि अभी हम तेरी रूह कब्ज़ कर लेंगे,
जैसे हम रूह कब्ज़ कर लेंगे, उदखुलुल जन्ना, उदखुलुल जन्ना, दाखिल हो जाना जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, ये बदला होगा उसका जो तुम दुनिया में करते थे, जो दुनिया में करते रहे, ये उसका बदला है कि जैसे ही हम रूह कब्ज़ करेंगे ऐसे ही तुम जन्नत में दाखिल हो जाना। असल जन्नत में दाखिला ये तो क़यामत के दिन होगा, लेकिन यहाँ जन्नत में दाखिले से क्या मुराद है? जन्नत की बशारतें, खुशखबरियाँ, और फिर कब्र के अंदर जब इंसान को लिटाया जाएगा, अगर वो पास हो गया तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दी गई, जन्नत की आबशारें नज़र आ रही, जन्नत की रहमतें नज़र आ रही, जन्नत से खाने और रिज़्क इसको कब्र में पहुंचाया जा रहा है, इसकी कब्र जन्नत बन गई। और अगर खुदा न खास्ता ये फेल हो गया और इसकी कब्र को जहन्नम बना दिया गया, जहन्नम की तरफ से खिड़की खोल दी गई और जहन्नम का धुआं, जहन्नम के अंगारे, वो सब ये आंखों से देख रहा है, और यहां तक कि जहन्नम से सांप और बिच्छू निकल के इसकी कब्र के अंदर घुसते जा रहे हैं। अब अल्लाह ताला ये दोनों फरीकों के जिक्र करने के बाद कल मुशरिकीन का जिक्र किया और आज ईमान वालों का जिक्र किया। अब दोबारा फिर तरगीब और तरहीब के तौर पर अल्लाह ताला मुशरिकीन को ये बता रहे हैं कि ये जो बात नहीं मान रहे, हल यंजुरूना, ये नहीं इंतज़ार कर रहे काफिर, इल्ला मगर अन तअतियहुमुल मलाइकतु, ये कि आ जाएं उनके पास फरिश्ते। कौन से फरिश्ते? अचानक फरिश्ते आए, जिस तरह पिछली कौमों पर फरिश्ते अजाब लेकर आए थे, ऐसे ये इंतज़ार में हैं कि कब हमारे पास फरिश्ते आएँ, अजाब लेकर आएँ। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन को, काफिरों को दावत व तबलीग फरमाते तो आप फरमाया करते थे कि डरो, मुत्तकी बन जाओ, नेक बन जाओ, वरना अल्लाह का अजाब आएगा और आखिरत में फ़ैसला होगा, जन्नत होगी या जहन्नम होगी। तो इनकार कर दिया करते थे, कहते हैं ना हम जन्नत को मानते हैं, ना हम जहन्नम को मानते हैं, ना हम मरने के बाद हिसाब व किताब को मानते हैं, ये कुछ नहीं है, कोई अजाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि दुनिया के अंदर जो इंतज़ार कर रहे हैं, हल यंजुरूना, ये नहीं इंतज़ार कर रहे काफिर लोग, इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु, मगर ये कि आ जाए उनके पास फरिश्ते, फरिश्ते अजाब लेकर आएँ। अब जब फरिश्ते अजाब लेकर आएंगे, जब अजाब को देखेंगे, अब तौबा तौबा करेंगे, लेकिन अब तौबा का वक़्त ख़त्म हो चुका, अब ईमान का वक़्त ख़त्म हो चुका। औ यअतिया अम्रु रब्बिक, या ये इस इंतज़ार में है कि आ जाए तेरे रब का हुक्म ख़ास, अल्लाह का कोई हुक्म ख़ास अजाब का आ जाए और डायरेक्ट कोई ज़ल्ज़ला आए या कुछ भी आए और ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, फिर उस वक़्त रोना पीटना शुरू करें और तौबा करें, उस वक़्त भी कोई कबूल नहीं होगी। कज़ालिक फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह किया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। अल्लाह फरमाते हैं ये मक्के के मुशरिक हैं, इससे पहले भी मुशरिक गुजरे, ये मक्के के काफिर हैं, इनसे पहले भी काफिर गुजरे, ये मदीने के मुनाफिक हैं, इनसे पहले भी मुनाफिक गुजरे। जो हालात उनके थे वही हालात इनके, जो हशर उनके साथ हुआ वही इनके साथ होगा, जो अजाब उनके ऊपर आए वही इनके ऊपर आएंगे। कज़ालिक फ़अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह किया उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। वमा ज़लमहुमुल्लाहु, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया उन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन ये अपनी जानों पर खुद जुल्म करते थे। जब अल्लाह ने अजाब में पकड़ा, पिछले लोगों को पकड़ा या मक्के के मुशरिकीन को पकड़ा, अल्लाह ने तो किसी पर जुल्म नहीं किया, ये खुद इन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा शरीयत मुतहरा के अंदर कानून है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो किसासन उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। अब ये कानून है, अब कोई बंदा किसी को कत्ल करता है तो इसको किसासन कत्ल कर दिया जाए, ये कहे कि उसके ख़ानदान वाले शोर मचाएं सारे और जुलूस निकालें, एहतजाज करें, हमारे बंदे को क्यों मार दिया। भाई किसी ने तुम्हारे बंदे पर जुल्म नहीं किया, उसने खुद अपनी जान पर जुल्म किया। और जैसा कि शरीयत के अंदर ये सज़ा है कि अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाए, अब वो शोर मचाए कि मेरा हाथ क्यों काट दिया, मेरे ऊपर जुल्म कर दिया,
भाई तूने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तूने क्यों ऐसा काम किया जिससे हाथ कट जाता। ऐसे ही जो अल्लाह ताला की सजाएं हैं, अल्लाह का अजाब है, ये बंदा खुद अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, बंदा खुद अपने पर जुल्म करता है। फ़असाबहुम सय्यिआतु, फिर पहुंची उनको सय्यिआतु, बुरी सजा, मा आमिलो, जो उनके आमाल थे, बुरे आमाल थे तो बुरी सजा पहुंची। वहाक बिहिम, और उलट पड़ा उन पर, मा कानू बिही यस्तहजिऊन, जो वो मजाक उड़ाया करते थे। ये वाकया आखरत में पेश आएगा कि दुनिया में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन और ईमान वालों का मजाक उड़ाया करते थे, और जब वहां पर खुद अजाब के अंदर पकड़े जाएंगे तो खुद मजाक बन जाएंगे, और खुद इनके ऊपर मजाक आएगा, लोगों को हंसियां आएंगी कि लोगों का मजाक उड़ाते थे, आप खुद अजाब के अंदर पकड़े गए। और दूसरी बात ये कि जिस अजाब का खुद मजाक उड़ाते थे उसी अजाब के अंदर पकड़े जाएंगे, तो वह खुद इनके लिए मजाक बन जाएगा और इनके ऊपर ठट्ठा होगा कि वहाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहजिऊन, इन्हीं के ऊपर ही उलट पड़ेगा जो ये सहाबा इकराम और ईमान वालों के साथ मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ईमान और मुत्तकी लोगों में शामिल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।